سر یہ آج جو ہم اسلامک پاور دیکھتے ہیں یا اسلام میں کچھ پاور دیکھتے ہیں تو اس سچوالا کی جی آ وجہ جی اس ہاں آپ بولیے آزاد ہلو جی، آزاد جی بولیے۔ ہاں تو اس کا جو ریزن یہ نہیں ہے کہ اسلام میں پاور ہے یا اسلام کے فالوورز میں پاور ہے، اس کی جو ریزن ہے اسلامک پاور جو آج دنیا کو نظر آتا ہے اس کا ریزن ہے یورپین کی فارن پالیسی۔ امریکہ اگر اس کو افغان کو ہکالتا ہے، افغان کو یہ طالبان کو افغان سے نکالتا ہے تو اس میں اس کے بینیفٹ کے وجہ سے نکالتا ہے، اور اگر موقع دیتا ہے آنے کا تو بھی اس کے بینیفٹ کی وجہ سے دیتا ہے۔ اور اس کو دیکھنے کے لیے آج کے موقع جیسا سچ والا سر کہہ رہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے سمجھنا آسان ہے۔ آج چائنا کے انٹرنل پالیسی دیکھ لیجئے اسلام کے بارے میں کیا ہے، اور فارن پالیسی دیکھیے آج طالبان کو ہیلپ کرتا ہے چائنا۔ تو یہ یورپین فارن پالیسی ہی اسلام کو ٹکائی ہوئی ہے۔ اسلام کی ریئلٹی دیکھنا ہے تو اسلام کے جسے گڑھ مانا جائے گا، مرکز کیندر بندو جو ہے تو وہ تو سعودیہ ہے۔ سعودیہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پوری دنیا کے مسلمان جو اسلام فالو کرتے ہیں وہ سعودیہ سے محبت کرتے ہیں، اور سعودیہ پلے جھاڑ رہا ہے ان نریشن سے کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ وہ اسلام کو اوائڈ کر رہا ہے، اگنور کر رہا ہے، لیکن یہ فارن پالیسی افغان میں طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو انفارمیشن ٹیکنالوجی ایسی چیز ہے، یہ اسلام کو زیادہ دیر ٹکنے نہیں دیں گی، کیونکہ افغان میں ابھی فی الحال میں ابھی جو نئی لینڈنگ ہوئی ہے طالبان کی، آج کتواں دن ہے اور کتنے لوگ مرے ہیں آج تک۔ آج کی کرنٹ نیوز میں بھی دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی بلاسٹ نظر آئے گا آپ۔ یہ ہے وہ ریئلٹی جو سچ والا سر کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں میں ہی دنیا جان جائیں گی کہ طالبان کو دوسری بار بھی موقع ملا ہے، پاور ملا ہے، تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس آج اس سال میں 3 ایسے حادثات نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے اسرائیل اور فلسطین۔ وہ جو ٹینشن تھا وہ کتنے دن رہا ہے اور کیسا رہا ہے۔ اسرائیل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے یہ بات کو کلیریفائی کرنے کا کہ اسلام ناٹ ہیو اینی پاور، یا اسلام کے اندر کوئی پاور نہیں ہے، یا اسلامک اسٹیٹ میں کوئی پاور نہیں ہے۔ اس کا ثبوت ہمارے پاس ہے گریٹ اسرائیل، جو چاروں طرف سے اسلامک اسٹیٹ سے گھرا ہوا ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسرا ہے پاکستان، جسے کہتا ہے اسلامک کنٹری یا اسلامک کمیونٹی کا گڑھ ہے، لیکن اسی سال وہاں لبیک تحریک لبیک پارٹی کا کچھ جمگٹا اٹھا تھا، اپنا پاور دکھایا روڈوں پر، اور بعد میں ڈنڈے بھی کھاتا ہوا نظر آیا پوری پبلک کو۔ یہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ انٹرنیٹ ہے۔ اس نے دھجیاں بکھیر دی ہے، لبیک تحریک لبیک والوں کی دھجیاں بکھیر دی ہے کہ ان کا پاور ان کے خود کے کنٹری میں نہیں ہے۔ اب یہ تیسرا آیا ہے یہ طالبان کا جو لینڈنگ ہوا ہے نیا نیا، یہ کچھ دنوں میں ہی لوگوں کو یہ بات کہنے پہ مجبور کر دے گا کہ ہم بنا طالبان کے سکون سے تھے۔ ابھی اسٹارٹ میں جو بھاگ رہے وہ بھی بتا رہے ہیں ہمیں، آج سے جو مریں گے وہ بھی ہمیں بتائیں گے، اور جو زندہ رہیں گے وہ زیادہ بتائیں گے ہمیں کہ اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، طالبان کیا ہے۔ تو ان کا کوئی پاور نہیں ہے، ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے ان کا۔ سچ والا جی۔ جی ہاں، آزاد جی کہہ رہے ہیں تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ نہ تو اسلام کے اندر خود سے کوئی پاور ہے، اور نہ جو ہے یہ اپنی کسی اس طرح کی جو ہے طاقت کی زور پر دنیا پر جو ہے کوئی اپنی حکومت کر سکتا ہے، بلکہ صرف اب تک جو ہے جو چلتا رہا کہ لوگ اس کو اندر سے نہیں جانتے تھے یا اس کو واقعی کچھ حقیقت سمجھتے تھے، تبھی تو یہ چلتا رہا۔ لیکن اب اس کے اندر کی ریئلٹی جو ہے لوگوں کے سامنے آنے لگی ہے، اس کے اندر کتنا کھوکھلا پن ہے یہ لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کو چھوڑنے والوں کی تعداد، اور آنے والے کچھ ہی سمے میں ایک واقعی سونامی آئے گی۔
यानी एक्स मुस्लिम की सुनामी आएगी। क्यों आएगी? जो भी इसको इस नजर से देखेगा वो समझ जाएगा कि इसका ताला माला क्या है, वो छोड़ देगा। ये मैं अपनी आंखों से देखी बातें कि जो है कितने ऐसे स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, जो मस्जिदों के खतीब हैं, मस्जिदों के इमाम हैं, बड़े बड़े मदरसों के जो है वहाँ मुदर्रिस हैं, वहाँ के मुअल्लिम हैं, वो अंदर से बिल्कुल मेरी तरह हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, उनको जो है वो खुलकर सामने नहीं आते। तो अब आप बताइए कि जो है एक आम आदमी भी जब 20-20, 25-25 लोगों को जानता है कि ऐसे लोग उसकी नजरों के सामने हैं, तो अब आप देखिए कि दुनिया भर में कितने लोग होंगे जो इस्लाम को छोड़ चुके हैं। क्यों छोड़े भाई? तो इसलिए छोड़े हैं कि इस्लाम की रियलिटी वो अपनी आंखों से देख चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि इस्लाम के अंदर क्या क्या जो है, किस तरह के बड़े बड़े झोल हैं, कैसे बड़े बड़े जो है घपले हैं, उनको समझ में आ गया, छोड़ दिए। तो अब जो आज भी लेके चल रहे हैं वो या तो जो है यूं समझिए कि वो एक जज्बाती अंदाज में, या फिर ये कह सकते हैं कि उनको इस्लाम से कुछ मफादात हैं, क्योंकि वो अगर खुलकर सामने आए तो जो है उनका बायकॉट हो जाएगा, उनकी हर तरफ से वो जो है कट जाएंगे, समाजी तौर पर कट जाएंगे, माशी तौर पर कट जाएंगे, इस डर से वो लेके चल रहे हैं। तो अब आप देखिए कि जिस आइडियोलॉजी में इतने बड़े बड़े झोल हैं, वो और मजीद कितने दिन चल पाएगा बताइए? भाई रूहानियत की बात तो इसमें है नहीं, सारा का सारा मामला सियासी था, और सियासी क्या है ये भी लोगों को समझ में आ गया। जिन बुनियादों पर जो है ये इमारत खड़ी की गई, जिस तरह से मैंने अभी कहा, असल में वो बुनियाद है ही नहीं। खुद कुरान के अंदर अल्लाह भी गायब है, और जिसे मोहम्मद कहा गया, माना गया, मनवाया गया, वो भी गायब है। हाजिर तो ये दोनों भी नहीं है। इन दोनों के तोगरों को दिखा दिखाकर जो कुछ लोगों ने अपनी धांधलियां की और अपने अपने जो है जाती मफादात जो हासिल करने थे कर लिए, एक सदियां गुजर गई। आज एक तरह का जो है वो रस्सी जल चुकी है, उसका बल अभी बाकी है। ये चल रहा है मामला, लेकिन ये बल, जला हुआ बल, अब आप सोचें कि जो है कितने दिन चल पाएगा और किस आधार पर चल पाएगा, ये है मेरा सवाल। क्योंकि ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि इस्लाम नामी इमारत की बुनियाद नहीं है। बड़े से बड़े स्कॉलर के साथ मैं इस बुनियाद पर या इस टॉपिक पर डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि वो साबित करें कि खुद कुरान के अंदर अल्लाह हाजिर है और कुरान के अंदर मोहम्मद हाजिर है। अब आप बताइए कि ये दो तुगरे जिसको दिखाकर ये लोग जो है अब तक ये चूरन बेचते थे, जब ये दोनों जब दोनों तुगरे अगर गायब हैं तो इनके पास हाजिर है क्या? अभी जरा बताइए, क्या हाजिर है? सिर्फ काली अकीदा, अकीदे के आधार पर ये आइडियोलॉजी कितना अरसा चल पाएगी, जबकि लोगों की आंखें खुल रही हैं। यानी अब आप देखिए कि कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पर आपको एक्स मुस्लिम नहीं मिलेंगे, हर गली मोहल्ले में मिलेंगे। ये तो आज 2021 की बात है, आने वाले 5 सालों में देखें कि इनकी तादाद दुगनी हो जाएगी, तब क्या होगा? और मजीद एक 10 साल के बाद यही तादाद ये मल्टीपल होती रहेगी, क्योंकि लोग समझ रहे हैं, लोगों के पास सवालात हैं, स्कॉलर के पास उनके जवाबात नहीं हैं। क्या हो रहा है जरा देखिए, लोग सवाल कर रहे हैं लेकिन जवाब नहीं है इनके पास। आज भी जो है जब जवाब के नाम पर वो पुरानी जो है 50 साल पुरानी कैसेट चलाते हैं ये लोग, ये इस्लाम के स्कॉलर जो हैं वही पुराना राग अलापते रहते हैं। तो क्या जदीद जहन जो हमारी युवा है, जो सोचने वाले हैं, जो देख रहे हैं अपनी आंखों से, जो लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, तो क्या इन उलमा के इन जवाबों से वो मुतमईन हो पाएंगे? जदीद जहन को मुतमईन करने के लिए उलमा के पास जवाब नहीं है। मुझ जैसा शख्स जब जो है अगर 5 सवाल भी कर दूंगा तो 5 में का एक भी जवाब नहीं दे सकते उलमा। ये हाल है उलमा का। संजय सर जी हाँ, जी हाँ।
क्या मैं एक सवाल करने की इजाजत चाहता हूँ आपसे? मुझसे या कर सचवाला सकता जी से? हूँ? आपसे एक सवाल है, कर सकता हूँ? करें करें। देखिए सर, हम भारतीय हैं और भारत में ये 2021 में एक्स मुस्लिम चैनल जो चल रहे हैं, उनको किसका सपोर्ट है? फॉरेन सपोर्ट है या गवर्नमेंट सपोर्ट है? किसका सपोर्ट है? पब्लिक का। सिर्फ पब्लिक का। सोचिए सर कि अगर इस चैनल वालों को या एक्स मुस्लिम को गवर्नमेंट का सपोर्ट या फैसिलिटी मिल जाए तो हमारे भारत में एक्स मुस्लिम कितने हो गए? विदाउट सपोर्ट, विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट, विदाउट गवर्नमेंट फैसिलिटीज ये काम हो रहा है भारत में, तो सपोर्ट के साथ कितना काम होगा? लेकिन जो मैंने आपके सामने, सचवाला जी के सामने, जो जी मैंने कहा है कि इस्लाम का पोषण किससे हो रहा है। देखिए, इस्लाम ने हम्म अपनी डिफेंस में बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनाई है। एक उसने दीवार बनाई है जिसको वो कहता है इस्लामोफोबिया, यानी जी इस्लामोफोबिया का नाम लेके वो लोगों के मुंह बंद करता है, एक चीज़। जी और इससे जो है वो सरकारें इससे घबराती हैं और सरकारें जो हैं वो इस्लाम को कुछ बोलने से फिर घबराने लगती हैं और उसको पॉलिटिकली करेक्ट होने लगती हैं। तो वो कहती है कि नहीं भाई, आप क्या है कि मुसलमान बुरा है, इस्लाम तो अच्छा है। वो टेररिस्ट बुरा हो सकता है, इस्लाम में कोई बुराई नहीं है, इस तरह की बात आने लगती है। या फिर वो इजाज़त दे देती हैं उनको कि जो उनके आलिम उलमा उनको जो चीज़ें पढ़ाते हैं कि तुम जो है 72 हूरें पाओगे तो तुम ऐसा करो कि तुम दूसरों के यहाँ से लड़कियों को कन्वर्ट करो, उनको बेवकूफ़ बना के, या तुम अपने ज़्यादा बच्चे पैदा करो। तो ये इनके तौर तरीक़े हैं इसको बढ़ाने के। तो यदि यह चीज़ें लगातार जारी रहती हैं तो ये ख़त्म कैसे होगा? मेरा ये सवाल है। सचवाला जी से पूछता हूँ, पहले बताएं आप। नहीं, मैंने अभी जो बात कही ना संजय जी, देखिए कि इस्लाम बतौर मजहब तो बाकी रहेगा, लेकिन बतौर दीन ये नहीं चल सकता। देखें कि जो एक्स मुस्लिम हैं वो मजहब को नहीं छोड़े, दीन को छोड़े हैं। क्योंकि देखें कि मजहब से किसी का कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। भाई ठीक है, नमाज पढ़ लो, आप मस्जिद बना लो, रोजे रख लो, और जो है साल में एक बार हज कर लो, टोपी पहन लो, दाढ़ी रख लो, कुर्ता पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा पहन लो, किसी को कोई शिकायत नहीं है, इससे चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्याज बेचो, जो आलू बेचो, सब्जी बेचो, गोश्त बेचो, जो चाहे कर लो, लेकिन जो है अपने चेहरे पर दाढ़ी सजा लो, टोपी पहन लो। लेकिन मसला क्या है? मसला पूरी दुनिया को दीन से था, और दीन का जो हवा था ये किन बुनियादों पर था कि भाई ये एक हमारे पास अल्लाह जैसी जो है एक ताकत है, हमारे पास जो है कुरान जैसी ताकत है, हमारे पास रसूल जैसी ताकत है। तो ये कुरान क्या है लोगों को समझ आ गया, अल्लाह कौन है क्या है ये लोगों को समझ आ गया, मोहम्मद क्या है ये लोगों को समझ आ गया। इस वजह से लोग इस दीन को छोड़ रहे हैं। लोग मजहब को नहीं छोड़ रहे हैं, दीन को छोड़ रहे हैं। तो दीन नहीं रहेगा तो मजहब सिर्फ एक जो है, यूं समझिए कि ठीक है दूसरे दुनिया में और भी जो है लोग इस तरह के रिचुअल्स करते हैं, ये भी करेंगे, चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं नहीं समझता हूं कि जो है इस्लाम बतौर मजहब से आपको जो है कोई आपत्ति है। आपको क्या आपत्ति है जरा बताइए, और दुनिया को भी क्या एतराज है भी अगर इस्लाम बतौर मजहब रहेगा, चलता रहने दे। बतौर दीन का प्रॉब्लम है ना, तो दीन की हकीकत लोगों के सामने आ चुकी है। इसी वजह से ये एक्स मुस्लिम हर दिन सैकड़ों के तादाद में, अगरचे कि वो खुलकर सामने नहीं आ सकते, उनकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। अब आज मुझे देख लें, आजाद जी को देख लें कि हम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा सकते भाई? इस्लाम पुरअमन मजहब है ना, इस्लाम तो जो है सलामती का दीन है ना, रिलीजन ऑफ पीस। उसकी हकीकत ये है, रिलीजन ऑफ पीस है, और उसकी हकीकत ये है कि हम अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। हम सच बोलने की बुनियाद पर हमारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। सिर्फ ये कि हम बताते हैं कि भाई दीन ये है, इसमें अल्लाह भी गायब है, मोहम्मद भी गायब है। हमारा सिर्फ ये कहना ये है कि हमको अपना चेहरा छुपाना पड़ता है।
सामने वाला इस बात को कबूल नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो तैश में आकर हमारी गर्दन उड़ा देगा। सवाल ये है कि ये गर्दन अल्लाह उड़ा रहा है या जो है या इस दीन के दुकानदार उड़ाते हैं? कौन उड़ाता है? अल्लाह उड़ाता है। भाई अगर मेरा झगड़ा अल्लाह से है तो वो मुझसे इंतकाम ले लेना, वो मुझसे बदला ले लेना, वो तो नहीं ले सकता। वो बेचारा तो इतना मजबूर है कि एक मरे हुए मच्छर को भी दोबारा जिंदा नहीं कर सकता, अगरचे कि उसके जो है उसका दावा ये है कि वो जिंदगी देता है, वही मौत देता है। मेरे सामने एक मच्छर मरा हुआ इस वक्त, उसको मौत हो गई। क्या अल्लाह इस मरे हुए मच्छर को जिंदगी दे सकता है? अगर मुझ जैसा आदमी ये पूछ ले कि भाई अगर इस मच्छर को जो है वो जिंदगी दे दे तो मैं ईमान लाने के लिए तैयार हूं, अगर नहीं तो मुझ जैसा आदमी कहेगा कि भाई ऐसे खोखले और मजबूर महज बेबस खुदा को मैं क्यों मानूं, क्यों?